So, good morning, students. Welcome to your first online class. And again, we have reached the online sessions, and no problem. We will study hard with this also. Fine. So, as we have done this chapter a little bit in our classrooms, okay, in this lecture, I am just going to revise that one. Fine. After that, we will move further. Then, our environment. Our environment means our surroundings, what you see in your surroundings. If you are sitting in your room, you can see the surroundings. That are the immediate surroundings. आपकी immediate surroundings हैं, ठीक है. But अकॉर्डिंगली अगर हम अपनी सराउंडिंग्स देखें, हमारा अपना एनवायरनमेंट देखें, तो उसमें देखो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें लिविंग थिंग्स आ रही हैं, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ रही हैं, है ना. एंड you will feel that you are dependent on these non-living things also, है ना. So we cannot live isolated. हम बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते हैं. हम बिल्कुल खाली, कोई भी चीज़ ना हो हमारे आसपास, उस तरीके से हम नहीं रह सकते. फाइन. सो हमें बहुत सारे हमारे आसपास, घर से बाहर निकलोगे, घर के अंदर जो है आपकी इमीडिएट सराउंडिंग है, जो आप चेयर, बेड, फ़ैन, वॉल्स, ये सब देख रहे हो. इवन बहुत सारे इंसेक्ट्स भी अपने आसपास देखोगे. दीज आर द लिविंग थिंग्स. हाँ. सो बट अगर हम घर के बाहर जाके निकल के देखें तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या आएगा. हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे जो हमारे आसपास हैं. और मीन्स दे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेयर वी आर, मीन्स व्हाट इज़ आवर लोकेशन, वेयर वी आर. मीन्स अगर हम माउंटेन्स पे जाते हैं, देन द सराउंडिंग्स आर नॉट द सेम, then the environment is not the same, है ना. So our environment depends upon the geographical and climatic conditions. So living objects जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते. दे इंटरैक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. जैसे हमें बैठने के लिए बेड चाहिए, चेयर चाहिए, ठीक है, कुछ तो चाहिए ना. सो मीन्स वी हैव टू इंटरैक्ट विद वन अदर. एक दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत होती है. सी वाटर वी नीड फॉर आवर सर्वाइवल, एंड इट्स नॉट द लिविंग थिंग, it's non-living thing. Means I'm dependent on a non-living thing, that is water. That's why in this way we are dependent on many non-living things. ठीक है जी. So normally as we have discussed कि हमें बहुत सारे हमारे सराउंडिंग्स में दो तरह की चीज़ें दिखती हैं अगर हम क्लासीफाई करें, डिवाइड करें तो. एंड दीज आर living things and non-living things. So living things we call the living components in our environment are biotic components, and the non-living things surrounding us are called abiotic components. Fine. So biotic components में plants आते हैं, animals आएंगे, reptiles आएंगे, insects आएंगे, amphibians आएंगे, so birds आएंगे. ठीक है जी. The only biotic material which is immovable, which cannot move, these are called plants. And the abiotic components are the non-living things. And you know the non-living things around us. See चीज़ें, objects तो आप देख रहे हो, material देख रहे हो, but instead of this we need air for breathing, and that is also the non-living thing. We need water, we need food, we need soil, we need light, we need temperature. These all are non-living things. Fine. So
And when we take these biotic and abiotic components together, they become our environment. Fine. So now see the biotic environment. ओपन योर बुक्स में हम बायोटिक एनवायरनमेंट भी रीड करेंगे. ठीक है जी. सो इन बायोटिक कंपोनेंट्स वी आर हैविंग प्लांट्स, देन एनिमल्स एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. And in abiotic component we are having air, water, soil and temperature. So सबसे पहले हम plants के बारे में देखते हैं. What are the plants? The biotic environment. In the biotic environment we are going to study about the plants. Plants are also known as producers or autotrophs. Then we will be having animals. Animals are known as consumers or heterotrophs. Then we are having microorganisms, and these are also known as decomposers. Then at the last we will be having the squenters. Fine. Now see the plants. Plants are known as producers or autotrophs. Q. Why they are known as producers? Why they are known as autotrophs? प्रोड्यूसर वर्ड जो आया है वो आया है प्रोड्यूस से. प्लांट्स प्रोड्यूस समथिंग न्यू. प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. सो खुद मतलब सेल्फ. सेल्फ मीन्स ऑटो. देन ट्रॉफ मीन्स फूड, न्यूट्रिशन. तो जो खाना अपना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. फाइन. देन they prepare their food by the process of photosynthesis. Now the word photosynthesis, इसको समझना ज़रूरी है कि photosynthesis बना कहाँ से. Photo means light. Synthesis मतलब to prepare something new. Synthesize होता है कुछ नया बनाना. Photo का मतलब होता है light. So जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट की हेल्प से कुछ नया बना रहे हैं. क्या नया बना रहे हैं? अपना फूड बना रहे हैं नया. सो दैट इज़ नोन एज, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. ठीक है. नाउ फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कुछ चीज़ें चाहिए प्लांट्स को. वो ऐसे ही नहीं फोटोसिंथेसिस कर सकता है. ठीक है. उसके लिए जो उसे चाहिए, इसको अगर हम बड़ा करके देखें, देखो ध्यान से. सॉइल में हम क्या डालते हैं? पानी डालते हैं. तो प्लांट का एक पार्ट होता है जो सॉइल के अंदर होता है, दैट आर द रूट्स. ये रूट्स क्या करेंगी? पानी को एब्जॉर्ब करेंगी. देन दिस वाटर विल गो अप फ्रॉम दिस स्टेम. इस स्टेम से अंदर जाएगा. ठीक है. देन अब ये देखो, ये पानी जो है स्टेम से ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा किसके पास? लीफ के पास. अब लीफ में जो होते हैं, लीफ में जैसे अब एक मिनट, एक पहले एग्जांपल लेते हैं. वो खाना खुद कैसे बना रहे हैं. आई हैव टेकन दैट इन द क्लास ऑल्सो. फिर भी आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा. सी, अगर हमें खाना बनाना होता है घर में, देन वी नीड सम रॉ मटेरियल. मान लो चावल बनाने हैं. चलो छोड़ो, चावल नहीं बनाते हैं, मैगी बनाते हैं. सो वी नीड मैगी, वी नीड वाटर एंड द मैगी मिक्सचर, है ना, मैगी मसाला. ये तीन चीज़ें चाहिए हमें. देन इन सब को डालने के लिए एक चाहिए पैन. बिना पैन के हम इसको नहीं पोर कर सकते किसी चीज़ में. ऐसे ही नहीं बन जाएगा ना. वी नीड अ पैन टू. देन आफ्टर दैट वी नीड, अगर ऐसे ही हम पैन में सारी चीज़ें डाल के रख देंगे मेजर करके, फिर भी नहीं बनेगी आपकी मैगी. तो मैगी बनाने के लिए आपको चाहिए गैस, हीट. फाइन. सेम इसी तरीके का प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स में. देखो, वाटर मेन इंग्रेडिएंट, ये जा रहा है कहाँ? रूट से स्टेम में. ठीक है जी.
एक इंग्रेडिएंट आ गया और स्टेम से जाएगा ये सीधा लीव्स में गया। देन लीव्स के पास कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, या यूँ लगा लो कि उनके अंदर छोटे छोटे डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, जिनसे गैसेस अंदर आती है या बाहर जाती है। मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज देयर विद दीज टाइनी पोर्स। छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। एंड वी कॉल दीज होल्स एज स्टोमेटा। हम इसको बोलते हैं स्टोमेटा। सो जो लीव्स होती हैं, लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इससे वो एनवायरनमेंट से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दूसरा इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब पानी के साथ मिनरल्स भी आ गए थे नीचे रूट से। सो 3 चीज़ें आ गई। मिनरल्स मसाले का काम करेंगे, है ना, पानी का काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मैगी की तरह काम करेगा। नाउ अब किस में डालें, कौन से बर्तन में डालें? प्लांट्स के पास कोई बर्तन नहीं है बट है। प्लांट्स they are having a green coloring material, green coloring pigment, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो एक वेसल का काम करती है। जैसे आप गैस के ऊपर एक वेसल रखते हो और वेसल में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो हीट एनर्जी मैगी और पानी को मिलती है, तब जाके वो बनना शुरू होती है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज़ देयर इन इट, एंड जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, वो भी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है उस लाइट एनर्जी का, एंड देन इट स्टार्ट अ रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनको कंबाइन करने लगता है और कंबाइन करके बनाता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जिसको आप कह सकते हो। ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फाइन। सो गैस का काम किसने किया? सनलाइट ने। वेसल का काम किसने किया? क्लोरोफिल ने। और साथ में जो चाहिए थी वो थे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है जी। आपके किचन की तरह से लीव्स ने भी काम किया। दैट्स वाई द लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कौन सी है? प्लांट्स की किचन कौन सी है? दीज आर द लीव्स। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। ये हमारी आ गई यहाँ से सन एनर्जी, सोलर एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी। क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स किया, एंड देन इट फ्रेम ग्लूकोज, ठीक है। ये दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, और साथ में बनी ऑक्सीजन गैस। फिर ये जो ऑक्सीजन गैस है ये उसी स्टोमेटा से, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई थी, उसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन बाहर जाएगी, एंड वी विल गेट द ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। So now we are going towards the next biotic environment, that is animals. Animals में आते हैं आपके heterotrophs। इनको हम कंज्यूमर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इनको सिर्फ फूड चाहिए, प्लांट से चाहिए, ठीक है जी। अब ये जो कंज्यूमर्स होते हैं 3 तरीके के हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनिवोरस। हर्बीवोरस जो होते हैं वो जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे काउ डियर। कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर। एंड ओमनिवोरस वो होते हैं जो जिनको जो मिल जाए वो खा लेते हैं, चाहे वो अगर उनको हम रोटी डाल देंगे रोटी खा लेंगे, दूध दे देंगे दूध पी लेंगे, और अगर उनको कोई छोटा मोटा जानवर जैसे चूहा वगैरह मरा हुआ मिल गया तो वो खा लेंगे। दैट्स वाई दीज आर ओमनिवोरस। फाइन जी। then we say that all the animals are directly or indirectly dependent on the plants. So what do you mean by directly or indirectly? See, the herbivorous animals which are eating plants only, so वो तो directly dependent है plants पे,
But what about lion and tiger? Means if there will not be any grass, अगर कोई ग्रास नहीं होगी, कोई ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे, then how the goat or cow or deer will survive? वो ज़िंदा नहीं रहेंगे. और अगर ये ज़िंदा नहीं रहेंगे, then what the lion and tiger will eat? So cow and deer are getting the energy from the plants, and then this plant energy goes to the lion and tiger when they eat the cow or deer. So that's why we can say that these all the animals are dependent on plants directly or indirectly. This is the indirect way. ये इनडायरेक्ट तरीके से डिपेंडेंट है. ठीक है जी. I hope that you have understood about this. Then we are having microorganisms, but it will take a bit longer time. So this is for today. Revise this. Fine. Then in our next lecture we will be doing microorganism and then biodegradable and non-biodegradable materials. Thank you very much.